Yes. Good afternoon to all my dear friends. As you know that today we are going to discuss the very important topic, that is the relation between mens rea and socio-economic offences. We can search how much actus non facere nisi mens rea is relevant in those offences which are covered under the category of socio-economic offences. In the normal sense, we can say that offences can be divided into two parts. First part covers traditional offences and second part covers socio-economic offences. Many authors say that basic difference between traditional offences and socio-economic offences are that in the traditional offences, if the law is silent, generally court apply the maxim, and in the case of the socio-economic offences, if law is silent, generally court does not apply requirement of the mens rea. The point is that basic difference is in both the offences on the basis of the application of the mens rea. At the same situations in the traditional offences, parliament or legislative bodies generally require the mens rea, but in the case of the socio-economic offences, requirement of the mens rea is dispensed. मेरे कहने का बस इतना सही मतलब है कि ट्रेडिशनल ऑफेंसेस में जब जनरल वर्ड में कहता हूँ, जनरली वर्ड जब मैं यूज करता हूँ, तो हमेशा कुछ उसके एक्सेप्शन हो सकते हैं। तो ट्रेडिशनल ऑफेंसेस में जनरली ये होता है कि आपका मैक्सिमम फॉलो किया जाता है। एक तरह से, और मैं जब आईपीसी पढ़ा रहा था, जिनको मैं पढ़ाया हूँ उनको थोड़ा सा रिमाइंड करा सकता हूँ। जैसे जब हम यहाँ पे कोई ऑफेंस है या कोई इंस्टीट्यूट है, सपोज दैट यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, एक इंस्टीट्यूट के दो पार्ट हैं, या दो दो तरह के प्रोविजन है। सपोज दैट द मान लीजिए कि कोई ऐसा सेक्शन है जैसे 299 है। 299 के पॉइंट को लेकर के बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कहा गया है, यहाँ पे लॉ क्लियर है कि इसका दोनों रिक्वायरमेंट होना चाहिए, एक्टस रियस भी होना चाहिए और मेंस रिया भी होना चाहिए। लॉ सिंपल सीधा कहता है कि हु एवर काज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट with the intention of causing death, or with the intention of causing such bodily as it is likely to cause death, or with the knowledge that by such act it is likely to cause death। तो यहाँ पे जुडिशरी के पास कोई स्कोप नहीं है। जुडिशरी हैज नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू convict the persons on the basis of the proof of both facts, that is actus reus or mens rea. It means here the role of the judiciary is nothing एक्सेप्ट टू अप्लाई द लॉ। लेकिन अब दूसरा पार्ट कवर करता है, कोई ऐसा प्रोविजन है जहां पर कि बाई चांस मेंस रिया का रिक्वायरमेंट के बारे में नहीं कह रहा है कि मेंस रिया होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वहां पर लॉ साइलेंट है। जैसे मान लीजिए कि हम 361 को ही कवर कर लेते हैं। 361 में सीधा कहता है कि हु एवर टेक्स और एंटाइसेस एनी माइनर अंडर द एज ऑफ 18 years in the case of the girls, in the case of the 20, sorry, in the case of the 18 years, sorry, 16 years, in the case of the 16 years, in the case of the woman, and in the case of 18 years, नहीं घबरा रहा है, कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, कह रहा है 361 को हु एवर टेक्स और एंटाइसेस एनी माइनर अंडर द एनी माइनर in case of woman under the age of 18 years, in case of the man under the age of 16 years, takes out of the possession without the consent of the guardians, he commits the offense of kidnapping। तो 361 में लॉ एक्टस रियस के पॉइंट पे क्लियर है कि हु एवर टेक्स आर इंटाइसेस, यहाँ पर टेकिंग एंड इंटाइसिंग कंप्लीट है। लेकिन मेंस रिया के पॉइंट पे कि मेंस रिया होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या किया जाए क्या ना किया जाए, यहाँ पे लॉ साइलेंट है। स्टेटूटरी प्रोविजंस यहाँ पे मेंस रिया के पार्ट को कवर नहीं करता, यहाँ पे साइलेंट है। जब यहाँ पे साइलेंट हो जाता है तो जजों को ऑप्शन मिलता है। अब जजों को ऑप्शन मिलता है, जजों के पास क्वेश्चन आता है कि इफ द लॉ इज साइलेंट whether a maxim, that is this maxim actus non facit reum nisi mens reum should be applied or not। In that circumstances, judges applied their mind. In some cases, for the example, in the R versus Prince case decided by
ऑनरेबल जस्टिस ब्लैकबर्न ने ब्रिटेन में जब इस तरह का केस डिसाइड किया था, तो वहां पे कह दिया था कि जब लॉ साइलेंट है तो वहां पे मेंसरिया का रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए एंड पर्सन वाज कन्विक्टेड। लेकिन एक बात और है, जब लास्ट साइलेंट होता है तो जजेस क्या अपने माइंड से अप्लाई कर देंगे कि मेरा मन कर रहा है कि हाँ मैक्सिमम अप्लाई किया जाए, कुछ कह रहा है कि मेरा मन कर रहा है कि मैक्सिमम अप्लाई नहीं किया जाए? क्या इस तरह से जजेस कर सकते हैं? नहीं, जजेस को इस तरह का पावर नहीं दिया गया है। दे हैव डिस्क्रिशनरी पावर, बट दैट डिस्क्रिशनरी पावर मस्ट ऑलवेज बी यूज्ड विथ रीजनेबल माइंड। If any judge does not apply the reasonable mind and decide the case, in that circumstances that judgment will not be valid. Why? Because requirement of Article 14 of the Constitution of India always required the reasonable mind. As you know that in the case of the बहुत कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा हूँ, इन द केस ऑफ द, एक मिनट फर्स्ट टाइम दो, तो 1 मिनट लगेगा मुझे। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस 1974 का जजमेंट है वो, जस्टिस भगवती ने डिसाइड किया था। चलो थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, जिसमें कहा गया था कि आर्बिट्रेरीनेस इज एंटीथेसिस ऑफ इक्वलिटी, एक वर्ड सेंटेंस है ना उस तरह का, और माइंड से उतर रहा है। तो हमारे कहने का मतलब है ऑलवेज मस्ट बी अप्लाइड विद रीजनेबल माइंड। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये जो डिस्क्रिशनरी पावर की बात है, जब लास्ट साइलेंट होता है तो वहां पे अप्लाई किया जाए या ना किया जाए। तो इसी को बात को लेकर के अगर हम सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस की अगर पार्ट की बात करें, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के पार्ट को अगर हम कवर करें, तो इसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लें। अगर यहाँ पे लॉ अगर क्लियर है, लॉ किसी बात को क्रिस्टल क्लियर कहता है, तो वहां पे तो जजों के पास कोई पावर है ही नहीं। जजेस क्या करते हैं कि सिंपली वो लॉ को डिसाइड कर देते हैं। लेकिन जहाँ पे लॉ साइलेंट है, लॉ अगर साइलेंट है, जैसे मान लीजिए कि हमने फेरा का ले लिया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को अगर हमने ले लिया तो वहां पे लॉ साइलेंट था मीन्स किया के रिगार्डिंग। तो हमने देखा कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएस जार्ज के केस में कन्विक्शन हुआ, लॉ साइलेंट था। तो हमने देखा कि जो कस्टम एक्ट था, जिसका कि लैंडमार्क जजमेंट था इंडो चाइना स्टीम नेविगेशन कंपनी केस, उसमें भी एक्यूज का कन्विक्शन हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि जो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, इसको अगर हम पार्लियामेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर डिसाइड करना चाहें, तो पार्लियामेंट भी इस तरह के केसेस में जनरली मेंसरिया के रिक्वायरमेंट को डिस्पेंस कर देती है, मेंसरिया के रिक्वायरमेंट को कर्टेल कर देती है। और जैसे मान लीजिए कि एनडीपीएस एक्ट हम ले लेते हैं। अगर एनडीपीएस एक्ट अगर हम देखें 1985 का, तो एनडीपीएस एक्ट के कुछ प्रोविजन में मेंसरिया के रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब है कि एनडीपीएस एक्ट के कुछ प्रोविजन में मेंसरिया का रिक्वायरमेंट तो है कि पर्सन कांट बी कन्विक्टेड विदाउट गिल्टी माइंड, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोविजन रख दिए गए हैं एनडीपीएस एक्ट में जिसमें कि पर्सन विल बी कन्विक्टेड इवन विदाउट गिल्टी माइंड। तो इस बात को लेकर के यहाँ पे पार्लियामेंट ने क्लियर कर दिया। अगर बाय चांस पार्लियामेंट ने लिखना भूल गया या साइलेंट साइलेंट है, तो वहां पे कोर्ट इंटरप्रेट करते समय सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में मेंसरिया को अप्लाई नहीं करता है। हमें लग रहा है कि मैं बहुत अच्छी तरह समझा नहीं पा रहा हूँ। अगर किसी को डाउट है तो एक बार पूछे, शायद मैं और क्लियर कर सकता हूँ। किसी को डाउट है क्या कहना चाहता हूँ? चलो, अब यहाँ पर हम आएंगे, इसी पार्ट को डिस्कस करेंगे। हमेशा क्वेश्चन भी आया हुआ है, अब स्टार्टिंग में आप जाओगे तो एक क्वेश्चन हमेशा आपको मिल जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन ईयर मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। देखिए क्या क्वेश्चन से भी है, 2019 का क्वेश्चन है कि एवरी एक्यूज्ड शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी माइंड। एक कार्डिनल रूल है, ये क्या है? कार्डिनल रूल है। लेकिन यह कार्डिनल रूल ट्रेडिशनल लॉ में फॉलो होता है, ट्रेडिशनल लॉ में कोई डिस्प्यूट नहीं है। ट्रेडिशनल लॉ में आईपीसी के पर्पज से यहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन अब एक क्वेश्चन पूछता है कि यह जो रूल है कितना, किस हद तक, हाउ, किस किस एक्सटेंट तक सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के इंस्टीट्यूट में अप्लाई होता है। कह रहा है कि एवरी एक्यूज शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी।
और हाउ फार इज दिस कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ दिस क्रिमिनल लॉ, इसी का एक पार्ट, इसी को हम टच करेंगे, दूसरा पार्ट भी कवर करेंगे, क्योंकि मेंस एरिया के पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को लेकर के है। लेकिन अगर प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के पार्ट को भी अगर हम कवर करेंगे, तो इस पार्ट को हम एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 35 और 54 से कवर कर लेंगे। खैर ये मेंस एरिया के पार्ट को कवर नहीं कर रहा है, फिर भी अब क्वेश्चन आ गया तो बता दूं। मालिमत कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जब 2003 में सबमिट की थी, 2003 में मालिमत कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। एक्चुअली मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय उन्होंने उस कमेटी को कंस्टिट्यूट किया था। खैर वहां उसका हिस्ट्री यहाँ बताने का जरूरत नहीं है। तो मालिमत कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी मार्च 2003 में, तो उसने इस पॉइंट को कवर किया था कि प्रिजम्पशन ऑफ द इनोसेंस को कवर किया था। उसने बहुत अच्छा चैप्टर लिख भी रखे हैं उसमें। लेकिन बस इतना मैं कहना चाहूंगा फॉर द टाइम बिंग के लिए, कि वहां पे इस प्रिजम्पशन को ट्रेडिशनल लॉ का पार्ट माना गया था। लेकिन ये हमारा क्वेश्चन है कि ये सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस तक किस हद तक के सुटेबल है, कितना सूट करता है। अब आप आंसर लिखते हैं और कहेंगे कि सर हम मालिमत कमेटी की रिपोर्ट के बारे में लिखें कि ना लिखें। देखिए मालिमत कमेटी का जो अभी आपको आंसर रिप्लाई किया हूँ, जो बताया हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड एक क्वेश्चन तो पूछ रहा है कि क्या हाउ मच दिस प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। यहाँ पे मालिमत कमेटी लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाई चांस अगर आप लिख देते हैं कि दिस प्रिंसिपल इज द cardinal in the Malimat committee in its report which was submitted in March 2003, it was clearly observed that every accused shall be presumed to be innocent till proved guilty. This is the cardinal principle in the traditional law. But problem is that how much this cardinal law should be applied socio-economic offences. Answer of this question should be given with the help of the relevant statutory provisions and केस ला। तो इसका आंसर इस तरह से होगा। अगर टाइम मिला तो हम लोग डिस्कस कर भी लेंगे, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। मेंस रिया का भी कुछ क्वेश्चन आया होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा मेंस रिया का। हाँ, एक आध क्वेश्चन देखिए, ये है ना कि हाउ आर द कंसेप्ट ऑफ मेंसरिया, नेचर ऑफ द लाइबिलिटी, बर्डन ऑफ द प्रूफ लाइक दिस आर अप्लीकेबल टू द सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। मतलब ये कह रहा है कि जो मेंसरिया का रिक्वायरमेंट है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में किस तक जरूरत है, कितना जरूरत है। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ जब आईपीसी हम लोग डिस्कस करते हैं तो, कि इसको एक बात समझ लेना कि अगर जहां पर ये मैक्सिम अप्लाई होगा, जहां पे एक्टस नॉन फैक्चर्ड रियम निसी मेंसरिया अप्लाई होगा, वहां पे विक्टिम के लिए फायदेमंद नहीं होगा। क्योंकि विक्टिम के साइड से दोनों प्रूफ करना पड़ेगा कि एक्यूज ने सेंटेंसिंग किया है। जैसे मान लीजिए कि रेप का केस है, अगर ये मैक्सिम अप्लाई कर दोगे तो ये बताना पड़ेगा कि एक्यूज ने एक्टस रियस तो किया ही किया, पेनेट्रेशन किया, लेकिन वह पेनेट्रेशन उसने इंटॉक्सिकेशन के पोजीशन में नहीं किया, वह पेनिट्रेशन जानबूझ करके किया गया। तो जब यह मैक्सिम अप्लाई होती है तो विक्टिम के फेवर में नहीं रहता है, क्योंकि विक्टिम को दोनों चीज प्रूफ करना पड़ जाता है। और उसका मेंसरिया जब प्रूफ करने की बात आती है तो कहता है, डिफेंस ले लेता है कि मुझे कंपलसरी शराब पिला दिया गया था, कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरी वाइफ है कि मेरी एक कौन है, ये है वो, बहुत मुश्किल हो जाता है और एक्यूज के फेवर में चला जाता है अगर मैक्सिम अप्लाई होता है तो। क्यों? क्योंकि दोनों चीज प्रूव करना पड़ता है विक्टिम के साइड से। लेकिन अगर ये मैक्सिम जहां नहीं अप्लाई होगी, वहां विक्टिम के भी लिखा हूं, विक्टिम के फेवर में जाएगा। क्यों? अगर विक्टिम ने प्रूफ कर दिया कि हाँ उसका एक्टस रियस था, अब उसका मेंटल कंडीशन क्या था, कैसे था, क्या समझ करके मेरे साथ किया, दैट ईच एंड एवरीथिंग इज इमेटेरियल। तो यहाँ पे विक्टिम के फेवर में जाता है और एक्यूज के अगेंस्ट में चला जाता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि जहां पे मेंसरिया का रिक्वायरमेंट होगा, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द एक्यूज एंड दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर द विक्टिम। तो अब इसका सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में किस हद तक प्रूफ करना है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन शायद आप समझ गए होंगे इस तरह का है। अब आते हैं इस पॉइंट को लेकर के। अब देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन होगा। देखो ये इन वाला जो इंट्रोडक्शन लिखा हूं मैं, आप एक्चुअली बेसिकली एक क्रिमिनल लॉ का इंट्रोडक्शन है।
मैं जब क्रिमिनल लॉ पढ़ाता हूँ तो वहाँ थ्रोली इस पार्ट को हम लोग कवर कर देते हैं। आप कहेंगे सर सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस को आप जब क्लास ले रहे हैं तो इसका फिर आपको जस्टिस राइट, जस्टिस गोडार्ड और जस्टिस ब्लैकबर्न ये सब का डिस्कस करने की क्या जरूरत है? देखिए ये सब डिस्कस करने का जरूरत मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि जब ये जजमेंट डिसाइड होते हैं, जैसे मान लीजिए कि जस्टिस गोडार्ड ही डिसाइड करते हैं। जस्टिस गोडार्ड ब्रेंड वर्सेस वुड का लैंडमार्क जजमेंट है। जस्टिस गोडार्ड को रिवाइवल ऑफ मेंसरिया का फादर भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि हु इज द फादर ऑफ रिवाइवल ऑफ मेंसरिया तो जस्टिस गोडार्ड ही है। तो जस्टिस गोडार्ड ने एक बात तो कही। जस्टिस गोडार्ड के बात को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जस्टिस गोडार्ड कहते हैं कि जहां पे लॉ साइलेंट है, जहां लॉ क्लियर है, जजेस हैज नो रोल, लेकिन जहां लॉ साइलेंट है तो जस्टिस गोडार्ड कहते हैं कि मेंसरिया अप्लाई होना चाहिए। मेंसरिया अप्लाई होना चाहिए, पर्सन शुड नॉट बी कन्विक्टेड विदाउट गिल्टी माइंड। लेकिन जस्टिस गोडार्ड कुछ वर्ड ऐसे लिख कर चले जाते हैं जिससे कि एक्सेप्शन भी निकल जाते हैं। एक्सेप्शन ये निकल करके आता है कि अगर लॉ साइलेंट है और वहां उसका नेसेसरी इम्प्लीकेशन है, वहां पे नेसेसरी अप्लीकेशंस है, आइदर क्लियरली और बाय नेसेसरी अप्लीकेशंस रूल्स आउट आउट मेंसरिया एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ क्राइम, तो वहां पर आप मेंसरिया के रिक्वायरमेंट को आप मतलब टाल सकते हैं, डिस्पेंस कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। अब नेसेसरी एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, जैसे मान लीजिए कि हम कई टॉपिक को पढ़ाते हैं, खासतौर से रेप को जो पढ़ाते हैं, तो हम बहुत स्ट्रांगली आर्ग्यू करते हैं कि भाई रेप स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आना चाहिए। रेप को लेकर के कोई टिल नाउ नो वन इज रेडी टू से दैट रेप इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। कोई आज की डेट में कहने को तैयार नहीं है कि रेप स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आना चाहिए। लेकिन कैसे आर्गुमेंट होता है कि वो आना चाहिए? क्योंकि ये कहता है, लॉ कहता है कि जहां पे अप्लीकेशन ऑफ लॉ का डिमांड हो, अप्लीकेशन ऑफ लॉ का अगर इस तरह का डिमांड हो तो या उस तरह का सेंस निकल करके आता है तो वहां पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को आप डिस्पेंस कर सकते हैं। खैर वो पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी जैसे मान लीजिए कि एक हालसबरी लॉ ऑफ इंग्लैंड में भी लिखा गया, कहा गया कि आप इंस्टीट्यूट के ऑब्जेक्ट एंड टर्म्स को पढ़ करके अगर ऑब्जेक्ट एंड टर्म डिमांड करता है तब आप मेंसरिया का रिक्वायरमेंट को डिस्पेंस कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। इसी को बेस बना करके जब फेरा का एक्ट साइलेंट था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का लॉ साइलेंट था, जब वहां पे आर्गुमेंट हुआ तो मेजोरिटी ओपिनियन ने कहा कि फेरा का डिमांड है। फेरा क्यों लाया गया? फेरा का ऑब्जेक्ट ये था कि भारत में जो गलत तरीके से स्मगलिंग लाई जा रही है, बाहर से जो एक्सचेंज किया जा रहा है, और उसको अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो पूरे इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये फेरा का ऑब्जेक्ट था। तो ऑब्जेक्ट डिमांड कर रहा है कि फेरा के मामले में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, फेरा के मामले में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। तो इसी को बेस बना करके वहां पे मेंसरिया के रिक्वायरमेंट को टाल दिया गया। तो हमारे कहने का मतलब है कि कुछ जजमेंट के माध्यम से हम कह सकते हैं कि मेंसरिया शुड बी फॉलोड, principle that is the actus non facit rem mensory actus non facit should be followed, but if there is a requirement there is a requirement of the object of the statutes or term of the statute, in that cases requirement of the mensoria can be rejected। अब सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के जितने भी आते हैं लॉ, उनका एक ही ऑब्जेक्ट होता है कि सोशियो ऑफेंसेस में वे ऑफेंसेस आते हैं जो कि आदमी को हेल्थ को प्रोटेक्ट करे, आदमी के मोरलिटी को प्रोटेक्ट करे, ये सोशियो इकोनॉमिक सोशियो ऑफेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक एक्ट है एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट। अब एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट के अंतर्गत सोशल ऑफेंसेस कैटेगरी में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ऑफ कोर्स आना चाहिए। एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो चाहे वो बैकवर्ड कैटेगरी का हो, दोनों का बिहेवियर जो एससी एसटी का है, जो दलित है, उसके प्रति निहायत मतलब बहुत ही कुछ कहना मतलब सब कुछ ठीक तो नहीं लगता जो भी है। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि दैट इज नॉट द गुड बिहेवियर। अंग्रेजी में सही रहता है, हिंदी में कुछ चीजें बुरी लगती हैं। The my point is that the SC/ST prevention of the atrocity SC/ST Act is not the SC/ST Act come under the category of
social offenses, and finally that will come under the socio-economic offenses, uh, like this. ठीक है, छोड़ो उसको. तो माय पॉइंट इज दैट द हियर द ऑब्जेक्ट ऑफ द, यस, तो वहां पे ऑफेंसेस सोशल इकोनॉमिक ऑफेंसेस में आ गया. अगर एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत अगर मेंसरिया का रिक्वायरमेंट कर दिया जाए कि हाँ आपका मेंसरिया होना चाहिए, तभी व्यक्ति का कन्विक्शन होगा, तो 90% क्रिमिनल एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट से बाहर चले जाएंगे. एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट से बाहर चले जाएंगे, उनका कन्विक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि मेंसरिया प्रूफ करने का बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. जैसे मान लीजिए कि हमारे गांव में कोई दलित आदमी है, हमने उसको अवार्ड में कह दिया, और जैसे चमार हमने कह दिया या कुछ और भी कह दिया. जैसे बाप दादा क्या करते रहते हैं, मतलब भाई कल को कुछ केस होगा, कह रहे हम तो ध्यान ही नहीं दिए, भाई हमारे घर में तो इसी तरह बुलाया जाता है, इसको समाज में इसी तरह से बुलाया जाता है. तो कल को ऐसा होता भी है. तो मेंस रिया के पार्ट को अगर रखा जाएगा तो 90% केसेस में लोग एक्विटल हो जाएगा, मतलब कि मैटर आएगा ही नहीं. देखिए, एवरी लॉ कैन बी मिसयूज, हर लॉ का मिसयूज होता है, लेकिन अगर किसी लॉ का 5% या 10% मिसयूज हो जाए और उसको बेस बना करके आप ये कहें कि नहीं इसको पूरी तरह से डिलीट कर दिया जाए, एबोलिश कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं है. एफआईआर रजिस्ट्रेशन को, जो एफआईआर होता है उसका भी मिसयूज होता है, तो क्या किया जाए कि सीआरपीसी को 154 को हटा दिया जाए. तो हमारे कहने का मतलब है, चाहे एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट हो, चाहे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है, फॉरेन है, एनडीपीएस एक्ट, जितने लॉ हैं उनमें या तो पार्लियामेंट खुद ही मेंसरिया के रिक्वायरमेंट को कर्टेल कर देती है, अगर कर्टेल नहीं करती है तो स्ट्रिक्ट मामले में इंटरप्रिटेशन करते समय जो जजेस होते हैं उस लॉ के ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए मेंसरिया के पार्ट को डिस्पेंस कर देते हैं, और पर्सन इज कन्विक्टेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टस रियल. इसी तरह से आर्कबोल्ड भी इसी बात को कहते हैं कि अगर हम इंस्टीट्यूट के वर्ड को देखें, सब्जेक्ट मैटर को देखें, ऑब्जेक्ट को देखें, तो इस तरह के मामले को देखते हुए सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में मेंस रिया को अप्लाई नहीं किया जाना चाहिए. 47th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की जब बात आती है, तो यहाँ पर 47th लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना कुछ सजेशन दिया. उसने अपने सजेशन में दो पार्ट को कवर किया. पहले पार्ट को इसने कवर किया, पहले पार्ट को इसने किया, इट वॉज सजेस्टेड दैट सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस मस्ट बी ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम ट्रेडिशनल क्राइम. इसने कहा, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट सबसे कहा कि वास्तव में ट्रेडिशनल ऑफेंस को और सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस को अलग अलग समझने की करने की जरूरत है. लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से ट्रेडिशनल ऑफेंस और सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस की अलग अलग कैटेगरी होनी चाहिए, दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए. वास्तव में ट्रीट करना भी चाहिए, क्योंकि मैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कहता हूँ ट्रेडिशनल ऑफेंस में एक व्यक्ति अफेक्टेड होता है, यहाँ पे हजारों लाखों करोड़ों अरबों व्यक्ति अफेक्ट हो जाते हैं. तो इस तरह के मामले में सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के मैटर को कवर करता है. तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों को अलग अलग ट्रीट करने की जरूरत है. तो जब अलग क्यों ट्रीट करने की जरूरत है, क्या है, व्हाट इज योर डिमांड, व्हाई डू यू नो, व्हाई आर यू सजेस्टिंग दैट द बोथ टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली, व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट बिहाइंड दिस, व्हाट डू यू वांट टू से. इन दैट सर्कमस्टांस लॉ कमीशन ने कहा इन दोनों को सेपरेट करके इस वाले मामले में मेंसरिया के रिक्वायरमेंट को खत्म कर देना चाहिए. लॉ कमीशन कहता है कि ट्रेडिशनल ऑफेंसेस में मेंसरिया शुड बी अप्लाइड. In traditional offences, maxim actus non facitorium nisi mensitoria should be applied with certain exceptions. But in socio-economic offences, mens rea should not be necessary. तो ये देखो जो लॉ कमीशन का रिपोर्ट है, सिर्फ मेंस रिया के पार्ट को कवर कर दिया. कह रहा है कि सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, तो इसका रीजन क्या है, क्यों यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में मेंस रिया के रिक्वायरमेंट को खत्म किया जाना चाहिए. व्हाट इज द रीजन, रीजन बताता है. रीजन ये बताता है कि देखो भाई, ट्रेडिशनल कुछ ऑफेंसेस कुछ व्यक्ति को मतलब हार्म पहुंचाता है, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस ग्रेटर स्टेज पर नुकसान पहुंचाता है. इस तरह के सिचुएशंस करके आता है, ठीक ना, तो कवर करता है. अब आप कहें चलो जाने दो,
इस तरह कवर हो गया। तो पहला सजेशन हो गया सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में। इस सजेशन में तीन बात है। पहली बात कहा गया कि दो बात है और एक का रीजन है। पहली बात कहा गया कि सोशियो और ट्रेडिशनल ऑफेंसेस की अलग अलग कैटेगरी हो, पहली बात। दूसरी बात है कि अलग कैटेगरी बना करके ट्रेडिशनल ऑफेंसेस में मैक्सिमम अप्लाई किया जाए, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में मैक्सिमम अप्लाई नहीं किया जाए। और क्यों अप्लाई किए जाए, ये रीजन है। रीजन इसलिए है कि ट्रेडिशनल ऑफेंसेस बहुत ही कुछ व्यक्तियों को अफेक्ट करता है, जबकि सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस एट लार्ज अफेक्ट करता है। अब दूसरा बात रही बर्डन ऑफ प्रूफ को लेकर के। जब वो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था तो बर्डन ऑफ प्रूफ की भी बात थी। कह रहा है कि सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ को शिफ्ट कराया जाना चाहिए। और बर्डन ऑफ प्रूफ बर्डन ऑफ प्रूविंग मेंस रियल यूटिलाइज एक्चुअली। 2 मिनट रुको थोड़ा सा, तो पानी पी कर आने तो मजा नहीं आ तो ये हो गई दिस 47th लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की दो इंपॉर्टेंट बातें हो गई। समझ गया, समझ गया आप लोग। चलिए अब कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट्स एंड केसेस रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड मेंसरिया। जब यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले सिख कस्टम एक्ट को ही हम लेते हैं। सिख कस्टम एक्ट हम इसलिए चर्चा करते हैं क्योंकि जब हम लोग एम एच जॉर्ज का केस पढ़ाते हैं तो जो आर्गुमेंट होता है दोनों साइड से, माइनॉरिटी जजमेंट और मेजोरिटी ओपिनियन जजमेंट जब आता है, तो उसमें आर्गुमेंट में एक केस आता है इंडो चाइना स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस जसजीत सिंह का केस है। ये जबरदस्त जजमेंट है, इसका रेशियो भी बहुत रिमार्केबल है। और आपके केस में जॉर्ज के केस में लास्ट, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ का पॉइंट होगा। तो वहां पे क्या हुआ था कि इस केस में जब हम लोग डिटेल में पढ़ाते भी हैं, जब केस पढ़ाते हैं तो वहां पे इसमें भी गोल्ड स्मगलिंग का ही मैटर था। अब वो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे क्या हुआ था कि लॉ साइलेंट था, जिसके अंतर्गत इसको चार्ज किया गया था। तो उसमें क्या किया गया था, क्वेश्चन था कि इफ द लॉ इज साइलेंट वेदर मेंसरिया शुड बी रिक्वायर्ड और नॉट। तो उसी का इंटरप्रिटेशन में सिख कस्टम एक्ट इसमें इन्वॉल्व था। तो ऑनरेबल जस्टिस ने क्या किया, कहा कि जनरल रूल इज दैट मैक्सिम इज अप्लाइड। जब मैं मैक्सिम कहता हूं तो मतलब एक्टस नॉन फैसिलिटी मेंसरिया का जनरल रूल इज दैट मैक्सिम इज अप्लाइड। लेकिन लेकिन यहां पर कहा गया है, आर्कबोल्ड के भी केस में कहा गया है कि उसके सब्जेक्ट मैटर को ध्यान में रख करके ही आप रिक्वायरमेंट करेंगे। बाय चांस ऐसा लॉ है जिसका सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से वो सूट नहीं करता है मेंसरिया का रिक्वायरमेंट, तो वहां पे मेंसरिया का रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। हाल्सबरी में कहा गया कि ऑब्जेक्ट एंड टर्म्स ऑफ द इंस्टीट्यूट के हिसाब से इंटरप्रेट करना चाहिए जहां ला साइलेंट है। तो इसी दोनों बात को लेकर के इसमें ज्ञानदेवल जस्टिस ने कहा कि अगर कस्टम एक्ट जैसे मामलों में अगर हम मेंसरिया का रिक्वायरमेंट अप्लाई करेंगे तो इस तरह के मैटर में दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, दूसरे देश से बहुत बड़े पैमाने पर स्मगलिंग करेगा। और अगर पकड़ में आ गया तो ठीक है, और नहीं पकड़ में आया तो पूरे देश की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस तरह के मामले में कोर्ट ने कहा कि सच टाइप्स स्मगलिंग्स आर अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस। जो बात हम जॉर्ज में कहा गया था ना, उसी तरह का इसमें भी बात कहा गया था। तो कुल मिला जुला करके आज क्या है ना कि खाना खा करके पढ़ा रहा हूँ। पहले क्या करता था कि पढ़ा लेता था तब खाना खाता था, इसीलिए। तो इस पार्टिकुलर केस में क्या है कि सी कस्टम एक्ट में इसको अप्लाई नहीं किया गया, सॉरी सी कस्टम एक्ट में इसको मेंसरिया के रिक्वायरमेंट को अप्लाई नहीं किया गया। एंड एक्यूज्ड वाज कन्विक्टेड इवन विदाउट गिल्टी माइंड। ये पहला केस है।
दूसरा लैंडमार्क जजमेंट इसमें यह है कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएस जॉर्ज का केस है। ये सबको मालूम भी है, बताने की जरूरत नहीं है। इसमें फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्ट का मैटर इन्वॉल्व था एंड इवन लॉ वाज साइलेंट इन दैट पर्टिकुलर केस। तो इस पर्टिकुलर केस में आपने देखा होगा कि कम से कम 10 जजमेंट एमएस जॉर्ज के फेवर में दिए गए और 10 जजमेंट एमएस जॉर्ज के अगेंस्ट में दिए गए। जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे केसेस हम डिस्कस करते भी हैं इस पार्ट को। तो उसमें इस केस में भी पर्सन वाज कन्विक्टेड इवन विदाउट गिल्टी माइंड। व्हाई ऑनरेबल कोर्ट ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द statute demands that in such cases persons must be convicted even without guilty mind। कल को मान लीजिए डेवलपिंग कंट्री है, इकोनॉमी ऐसे हिल डुल रही है, अब कोई आदमी बाहर से 1000 टन का सोना लेकर के आ जाए और पकड़ में आ गया तो ठीक है, नहीं पकड़ में आएगा तो पूरा इकोनॉमी ही डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस तरह के मामले में यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर सेकेंड केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मिजाज। आप सब लोग इसके बारे में जानते हैं, यहाँ हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तीसरा केस है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट का है, हमारे सिलेबस में है भी, हम आपको बहुत थ्रोली इस एक्ट को पढ़ाएंगे भी। फिलहाल एक केस है आपके सिलेबस में है, ये केस चेतन जे वासवानी एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है। हम आपको जब सिलेबस में डिस्कस करेंगे इसको थ्रोली डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर टाइम बिंग के लिए बस एक लाइन करना चाहेंगे। इस एक केस में सेक्शन 18 ऑफ द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट इन्वॉल्व था। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट इन्वॉल्व था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लॉ सेक्शन 18 साइलेंट है, इस मामले में पर्सन मस्ट बी कन्विक्टेड इवन विदाउट गिल्टी माइंड। ठीक ना? कहता है कि फॉर एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन मेंसरिया इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक ना? इस तरह की चीजें में निकल करके आती है। तो आपका तीसरा केस हो गया। तो तीनों केस आप बहुत अच्छी तरह से जानेंगे, दो जानते हैं और तीसरा हम आएंगे तो आपको थोड़ी पढ़ा भी देंगे। तो 3 केस हो गया जिसका कि आपका आंसर हो। चौथा आपका है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसको शॉर्ट में पीएमएलए एक्ट कहते हैं। इसको जब हम डिस्कस करेंगे तो रामा राजू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आपको दिया हुआ है। वहां पर भी ये निकल करके आया क्वेश्चन था कि क्या सेक्शन 8 इज इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ वेग एंड एक्सक्लूजन ऑफ मेंसरिया। सेक्शन 8 के द्वारा मेंसरिया का रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया गया था और इसको चैलेंज किया गया कि मिलर्स दिस मैक्सिम इज ए कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द क्रिमिनल लॉ, दैट्स व्हाई एक्सक्लूजन ऑफ मेंसरिया इज द illegal, that is the this law is void। लेकिन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि नो नो, पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव बॉडी हैज द पावर, दे कैन मेक एनी टाइप्स ऑफ लॉ, दे कैन एक्सक्लूड द मेंसरिया। तो इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस लॉ इज ए गुड। तो हम कह सकते हैं कि रामा राजू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया कि सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस जैसे ऑफेंस के मामले में मेंसरिया को एक्सक्लूड किया जा सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब लास्ट जजमेंट है सेक्शन लास्ट आपको कुछ है, देख लो तुम लोग हो कि चले गए, पता चले हमें क्लास ले रहे हो तुम सब गायब हो जाओ। अब यहाँ पर है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस एक्ट है, बहुत ही पॉपुलर एक्ट है और अभी इसमें अमेंडमेंट चल भी रहा है, इसका अमेंडमेंट की चर्चा भी चल रही है। और अभी मैं इसका डिबेट तो ज्यादा नहीं सुन पाया था क्योंकि टाइम आजकल देता ही नहीं सबके लिए, लेकिन एनडीपीएस एक्ट का डिबेट चल रहा है, इसमें अमेंड हो रहा है। उसके अमेंड का रीजन क्या है कि सेक्शन 27A में थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा रहा है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन बस मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। क्योंकि ठीक है, बाद में जब आएंगे तो थोड़ी पढ़ाएंगे। तो एनडीपीएस एक्ट में भी दो सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासतौर से सेक्शन 35 है। सेक्शन 35 कहता भी है, कहता है कि एनडीपीएस डिस्पेंसेस विद द इंटेंशन टू कॉज इंजरी लाइक दिस डायरेक्ट द कोर्ट टू प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट। मतलब कुल मिला जुला करके ये कहने का मतलब है कि सेक्शन 35 कहता है कि प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि हाँ आपका गिल्टी माइंड था, तो आपका प्रिजम्पशन हो जाएगा आपके अगेंस्ट में कि आपका गिल्टी माइंड था। इसका मतलब ये हो गया कि अगर प्रोसिक्यूटर ने प्रूफ कर दिया कि आपका एक्ट सीरियस था और आपने इस बात को डिस्प्रूव नहीं कर पाया कि आपका मेंटल कंडीशंस नहीं था, तो इस तरह के मामले में आपका कन्विक्शन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो प्रिजम्पशन है वो आपके अगेंस्ट में ही है।
तो आपके ऊपर प्रूव करना पड़ेगा कि देयर वाज नो मेंस रिया। एक क्वेश्चन था जिसको कि इसका डायरेक्ट आंसर यही है। एक क्वेश्चन था ना लास्ट में, लास्ट में शुरू में क्वेश्चन था। हाँ, एक क्वेश्चन था ना कि एवरी एक्यूज शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट, हाउ फार दिस कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ इररिलेवेंट। इसका डायरेक्ट आंसर सेक्शन 35 पर ही है। जब भी अगर इसकी चर्चा हो तो सेक्शन 35 आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। अभी जब, हाँ ठीक। तो एनडीपीएस एक्ट हो गया, कवर कर लिया आपका, उसका एक है। इसके दो सेक्शन है आपका एनडीपीएस एक्ट का। सेक्शन 35 है जिसमें प्रिजम्पशन ऑफ गिल्टी माइंड का लेकर के है और बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट कर जाएगा। और ये फैक्ट मस्ट बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ये सेक्शन 54 कहता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बेसिकली 4 पॉइंट जो है, जो कि आप फिफ्थ पॉइंट को आप हटा भी सकते हैं। तो 4 पॉइंट है जिसमें कि आप कस्टम एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है। इसको हम कर सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट जनरल रूल इज दैट इन सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस रिक्वायरमेंट ऑफ मेंसरिया इज नॉट रिक्वायर, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द मेंसरिया। 2 मिनट और लूंगा जिसमें कि हम इसको ब्रीफ कर देंगे। जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो हम यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू समराइज दिस पॉइंट। We can say that the question is that whether, yeah, how much actus non facit rem nisi maximum should be applied. Answer can be given with the help of the introduction about the maxim, about the liability for fault. Everyone know that what is the liability for fault. Liability for fault means no one can be convicted without his fault. तो इसका एक्सेप्शन निकल करके आएगा, या एक कह सकते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, पर्सन कैन बी कन्विक्टेड इवन विदाउट हिज फॉल्ट। 47th report of law commission of India suggested that the traditional law and socio-economic offences must be differentiated, and in the case of socio-economic offences there is no requirement of the mens rea. There are some leading cases. First of them is that Indochina Steam Navigation Company case, in which person was convicted even without guilty mind. Second landmark judgment is that state of Maharashtra versus MS Jars. Even in that case, person was convicted without guilty mind. I have also written two more judgment. One was that the Chetan judgment, and I am forgetting name of the other. Here the introductions part clearly said that at the time of the interpretation of the any types of criminal law, object and term of the statute must also be considered. And this is the report of the socioeconomic offenses. This part covers the cases: Sikh Custom Act, Indochina Steam Navigation Company case, MS Jars case, Chetan J. Baswani case, Immoral Traffic Prevention Act, and Rama Raju case. In this way, I completed these questions. I will stop the recording and again I will on the recording. Please wait.